This is the second part of chapter motion. हमने फर्स्ट पार्ट में डिस्कस किया डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, स्पीड, वेलोसिटी, एवरेज स्पीड एंड डिस्टेंस टाइम ग्राफ फॉर यूनिफॉर्म मोशन. Today we will start from the topic non-uniform motion and distance time graph of non-uniform motion. So let's see what is non-uniform motion. When an object travels unequal distances in equal interval of time, then the motion is said to be non-uniform motion. मतलब कोई भी object unequal distances travel करेगा in equal interval of time. Let's see, say initially at 0 second, then after 1 second distance कितना travel करता है, उसके बाद 2, 3 and 4. मतलब टाइम का इंटरवल जो है वो सेम रहेगा या फिर इक्वल रहेगा. जैसे फर्स्ट टेकिंग 1 second, आफ्टर दैट अगेन 1 second and again 1 second. That means time interval is same in non-uniform motion, but the object will travel unequal distances. से 0 second में ऑब्जेक्ट 0 मीटर ट्रेवल किया, उसके बाद आफ्टर 1 second से 1 मीटर ट्रेवल किया, after 1 second, next another second, it travels 3 meter, and again in next second he travels 6 meter, and in the fourth second, let's say he travels 7 meter. So if we see here, the interval is not same or not equal. पहले 0 से कितना ट्रेवल किया, 1 मीटर ट्रेवल किया, उसके बाद 1 मीटर से कितना ट्रेवल किया, 3 तक, मतलब 2 मीटर. नेक्स्ट 3 से 6, लेकिन 3 मीटर, एंड आफ्टर दैट 1 मीटर. इसमें जो हमारा इंटरवल है डिस्टेंस का वो इक्वल नहीं है, अनइक्वल है. That type of motion is called non-uniform motion. Let's see the graph of non-uniform motion, distance time graph. So let's say this is x-axis and this is y-axis. डिस्टेंस को हम s से डिनोट करते हैं. डिस्टेंस y-axis पे लिया हमने और टाइम लेंगे हम x-axis पे. एट 0 second the object travels 0 मीटर, मतलब ओरिजिन पे ही है. 1 second he travels 1 मीटर, ये 1 second और ये 1 मीटर. So the point will be here 1 second in 1 मीटर. अब ये लिखा नहीं है, ये मान लो 1 second, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 and 8. Okay. In next 1 second, that is 2 second में कितना ट्रेवल करता है, 3 मीटर. In 2 second, the object moves 3 meter. That is here. And in 3 second, he moves 6 meter. In 3 second, 6 meter. And in 4 second, 7 meter. Okay. So it will be here. So if we see the graph, then it has first curved this much and then this much. So for non-uniform motion, the distance time graph is always curved. और यूनिफॉर्म मोशन के लिए डिस्टेंस टाइम ग्राफ कैसा होता है, इट इज अ स्ट्रेट लाइन. और नेक्स्ट टॉपिक इज वेलोसिटी. स्पीड विद डायरेक्शन इज कॉल्ड वेलोसिटी. लेट्स से it is a point A and this is a point B, and an object moves from A to B with a speed 50 kilometer, so let's say 50 kilometer per hour. It is his speed because it does not have any direction. But if we say specifically, let's say this is our north direction and this is say south. If we say that the object is moving from south to north or in the north direction, then it will call velocity. That means 50 kilometer per hour in north. इधर हमने क्या स्पेसिफाई कर लिया, डायरेक्शन को. That means the object is moving towards the north. This is called velocity. And velocity is a vector quantity. That means it has
डायरेक्शन। नेक्स्ट वन इज एवरेज वेलोसिटी। जैसे एवरेज स्पीड होता है, एवरेज स्पीड में क्या होता है, टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। इधर एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला है वी एवरेज इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय 2। और u क्या डिफाइन कर रहा है यहाँ, u इज इनिशियल वेलोसिटी एंड v इज फाइनल वेलोसिटी। इसको और थोड़ा जान लेते हैं। जैसे जैसे कोई भी ऑब्जेक्ट ए है, ये पहले इनिशियली u वेलोसिटी से जा रहा था, उसके बाद कुछ देर बाद उसका वेलोसिटी में चेंज आया, कितना चेंज आया से v। then the average velocity will be v average is equal to initial velocity u plus final velocity v divided by 2। let's solve NCERT example। तो क्वेश्चन में क्या है, an object travels 16 meter in 4 second and then another 16 meter in 2 second, what is the average speed of the object। तो फिजिक्स में जब भी न्यूमेरिकल करेंगे तो डायग्राम पहले ड्रॉ करेंगे। जैसे एन ऑब्जेक्ट ट्रेवल 16 मीटर, अब मान लो कोई भी एक ऑब्जेक्ट है जो ए पॉइंट से बी पॉइंट तक जाता है, और मान लेते हैं ए से बी तक का डिस्टेंस कितना है 16 मीटर। ये ऑब्जेक्ट 16 मीटर कितना टाइम में ट्रेवल करता है, इन 4 सेकेंड। दैट मीन्स इस ऑब्जेक्ट को, कोई भी ऑब्जेक्ट, ये मान लो इस ऑब्जेक्ट को ए से बी तक आने में कितना टाइम लगता है, 4 सेकेंड। एंड देन अनदर 16 मीटर इन 2 सेकेंड, और उसके बाद अनदर 16 मीटर चलता है मान लो यहाँ तक सी पॉइंट तक। दैट मीन्स फ्रॉम बी टू सी द डिस्टेंस इज 16 मीटर। और ये 16 मीटर ट्रेवल करने में उसे कितना टाइम लगता है, इन 2 सेकेंड्स। ओके, तो बी से सी तक जाने में कितना टाइम लगता है, 2 सेकेंड्स लगता है। व्हाट इज द एवरेज स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट। अब एवरेज स्पीड निकालना है। एवरेज स्पीड वी एवरेज का फॉर्मूला क्या है, टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। ओके, व्हाट विल बी द टोटल डिस्टेंस फ्रॉम ए टू बी। Total distance is 16 meter, and from B to C the distance is again 16 meter. So the total distance will be 16 plus 16 which is 32 meter। तो हम टोटल डिस्टेंस के जगह क्या लिख सकते हैं, 32 मीटर लिख सकते हैं। एंड टोटल टाइम, अब देखो ए से बी तक जाने में कितना टाइम लगता है, 4 सेकेंड्स। एंड बी से सी तक जाने में कितना टाइम लगता है, 2 सेकेंड्स। सो द टोटल टाइम इज 4 प्लस 2 विच इज इक्वल टू 6 सेकेंड। तो हम टोटल टाइम की जगह क्या लिख सकते हैं, 6 सेकेंड। 2 से डिविजिबल है, या फिर डिवाइड कर दो। 5 6 30 और 2 कैरी डेसिमल दिया, 6 3 18 19 20 अगेन 3 मीटर पर सेकेंड। Another example 7.2। The odometer of a car। okay, odometer and speedometer गाड़ी में होता है। odometer measures distance और speedometer measures the speed of the car। So uh, the odometer of a car reach 200 किलोमीटर। मतलब इनिशियली एक कोई भी एक गाड़ी का ओडोमीटर है, ओडोमीटर क्या नापता है, क्या मेजर करता है, डिस्टेंस। ओडोमीटर पे कितना लिखा हुआ है, 2000 किलोमीटर। मतलब गाड़ी ऑलरेडी 2000 किलोमीटर चल चुका है से एट पॉइंट ए। ओके, एट द स्टार्ट ऑफ ए ट्रिप। ओके, ट्रिप शुरू करने से पहले उसके ओडोमीटर पे कितना लिखा हुआ दिखा, 2000 किलोमीटर। एंड 2400 किलोमीटर एट द एंड ऑफ द ट्रिप। अब मान लो ये कहीं भी घूमने गया, कहीं भी ट्रिप करने गया, ये मान लो पॉइंट बी, यहाँ तक उसने ट्रिप किया था, और बी पे आके उसने चेक किया ओडोमीटर को, तब क्या देखा, ओडोमीटर पे कितना लिखा हुआ है, 2400 किलोमीटर। दैट मीन्स ये ए से बी तक कितना डिस्टेंस उसने कवर कर लिया, या फिर कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर लिया, 400 किलोमीटर, है ना। इनिशियली 200 लिखा हुआ था, उसके बाद 2400। दैट मीन्स 2400 माइनस 2400 माइनस 2000 विच इज इक्वल टू 400 किलोमीटर। दैट मीन्स
ए से बी तक उसने कितना ट्रिप लगाया, 400 किलोमीटर। इफ द ट्रिप टूक्स 8 आवर, अब ए से बी तक जाने में उसको कितना टाइम लगा, 8 आवर। कैलकुलेट द एवरेज स्पीड ऑफ द कार इन किलोमीटर पर आवर एंड मीटर पर सेकेंड। एक बार किलोमीटर पर आवर पे निकालना है और उसके बाद मीटर पर सेकेंड पे। अब इधर दिया क्या हुआ है, डिस्टेंस दिया हुआ है, या फिर टोटल डिस्टेंस बोलो, टोटल डिस्टेंस कितना दिया हुआ है, कितना कवर किया, कितना ट्रेवल किया, 400 किलोमीटर। ओके, और इस 400 किलोमीटर को ट्रेवल करने में उसको टाइम कितना लगा, 8 आवर। दैट मीन्स टोटल टाइम इज 8 आवर। So we need to find average speed. So V average speed is equal to total distance divided by total time. ओके, टोटल कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, 400 किलोमीटर। कितना टाइम लगता है 400 किलोमीटर ट्रेवल करने में, 8 आवर लगता है। ओके, तो हाथ से 8 5 जब 40, 0 50 किलोमीटर पर 50। अब यूनिट क्या हो जाएगा, ये किलोमीटर लिया था हमने डिस्टेंस को, और टाइम का यूनिट लिया था आवर। दैट मीन्स इट विल बी किलोमीटर पर आवर। अब देखो ये एवरेज स्पीड हमें मीटर पर सेकेंड में भी निकालना है। अब एक नंबर, ये चीज याद रखो, किसी भी नंबर को जो किलोमीटर पर आवर में लिखा हुआ है उसको अगर मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करोगे तो एक डिजिट से मल्टीप्लाई कर दो। The digit is 5 by 18, not a digit, it's a number, 5 by 18। तो ये मल्टीप्लाई करने के बाद ये जो स्पीड किलोमीटर पर आवर पे था वो कन्वर्ट हो जाएगा मीटर पर सेकेंड में। अब 2 से डिवाइड कर दो या फिर कैंसिल कर दो, 2 से 9 टाइम्स, 2 से 25 टाइम्स। दैट मीन्स ये 5 5 जा 25, 5 2 कैरी, 5 2 जा 10, 12 125 डिवाइडेड बाय 9 मीटर पर सेकेंड। और इसको अगर डेसिमल में लेना चाहते हो तो ये भी कर सकते हो। 9 9 से 125 को डिवाइड कर दो, 9 1 जा 9, 10 11 12 3 5, दैट मीन्स 9 3 जा 27। ओके, तो 13 पॉइंट समथिंग आएगा मीटर पर सेकेंड। ओके, आवर नेक्स्ट टॉपिक इज एक्सेलरेशन। व्हाट इज एक्सेलरेशन? ओके, डेफिनेशन में दिया हुआ है, द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। व्हाट इज एक्सेलरेशन? लेट्स से कोई भी एक ऑब्जेक्ट ए ये मूव कर रहा है इस डायरेक्शन में। इनिशियली इसका जो वेलोसिटी है वो मान लो कितना था, 50 किलोमीटर पर आवर। उसके बाद मान लो एट एनी टाइम 2 आवर, 2 घंटा बाद ये जो ए ऑब्जेक्ट है उसका स्पीड इंक्रीज हो गया है 80 किलोमीटर पर आवर। Initially the object was moving at a speed of 50 kilometer per hour, and after 2 hours its speed increases to 80 किलोमीटर पर आवर। जैसे होता है ना गाड़ी में, स्कूटी में हमने एक्सेलरेशन दबा दिया वो तेज भागता है, ऐसा। तो इसमें से एक्सेलरेशन क्या है, चेंज इन वेलोसिटी। व्हाट द वेलोसिटी चेंजेस हेयर। देखो इनिशियली, दैट मीन्स इनिशियली, इनिशियल वेलोसिटी को हम u से डिनोट करते हैं। इनिशियली द ऑब्जेक्ट वाज मूविंग एट अ स्पीड ऑफ 50 किलोमीटर पर आवर, and after 2 hours his final velocity becomes 80 kilometer per hour। That means v becomes 80 kilometer per hour। अब देखो इसमें चेंज कितना हुआ वेलोसिटी में, ओबियसली देख के पता चल रहा है कि 50 किलोमीटर पर आवर से जा रहा था, उसके बाद 80 हो गया। दैट मीन्स 30 किलोमीटर पर आवर उसका स्पीड इंक्रीज हो। मतलब हम चेंज इन वेलोसिटी इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, 80 माइनस 50 विच इज इक्वल टू 30 किलोमीटर पर आवर लिख सकते हैं। तो
चेंज इन वेलोसिटी में हमने क्या किया, फाइनल वेलोसिटी माइनस किया इनिशियल वेलोसिटी। दैट मीन चेंज इन वेलोसिटी इज इक्वल टू, हम क्या लिख सकते हैं, v माइनस u भी लिख सकते हैं। किसके रिस्पेक्ट में, व्हाट इज एक्सेलरेशन, द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रेस्पेक्ट टू टाइम। किसके रेस्पेक्ट में हमें चेंज इन वेलोसिटी का निकालना है, टाइम के रेस्पेक्ट में, which is called acceleration। अब देखो इसका फॉर्मूला क्या आ जाता है, एक्सेलरेशन a is equal to change in velocity, मतलब क्या है, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम विथ रेस्पेक्ट टू टाइम बनाना। दैट मीन्स टाइम से डिवाइड कर देंगे, उसको ही हम क्या बोलते हैं, एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विथ रेस्पेक्ट टू टाइम। अब एक्सेलरेशन का यूनिट क्या है, व्हाट इज द यूनिट ऑफ एक्सेलरेशन। अब देखो वेलोसिटी माइनस वेलोसिटी हो रहा है, दैट मीन्स ऊपर यूनिट क्या आएगा, देखो मान लो इधर क्या हो रहा था, 80 किलोमीटर पर आवर था, माइनस में क्या किया हमने, 50 किलोमीटर पर आवर किया। दैट मीन्स हमारा आंसर कितना आया था, 30 किलोमीटर पर आवर। दैट मीन्स ये ऊपर v माइनस यू करके जो यूनिट मिलेगा वो यूनिट क्या होगा, किलोमीटर पर आवर होगा हमारे हिसाब से। लेकिन अगर वेलोसिटी का ऐसा यूनिट ले, व्हाट इज द ऐसा यूनिट ऑफ वेलोसिटी, इट्स मीटर पर सेकेंड। दैट मीन्स v माइनस यू ऐसा यूनिट में कन्वर्ट करके अगर करते हैं तो यूनिट फाइनल में क्या आएगा, मीटर पर सेकेंड आएगा। तो एक्सेलरेशन का यूनिट क्या हो जाएगा, ऊपर v माइनस यू है, v माइनस यू का यूनिट क्या हो जाएगा, मीटर पर सेकेंड, और डिवाइडेड बाय क्या है हमारा टाइम, टाइम का यूनिट ऐसा यूनिट इज सेकेंड। अब देखो s के नीचे 1 है, अब ये डिवाइड हो रहा है, डिवाइड को मल्टीप्लाई करने से नीचे वाला क्या हो जाता है, रेसिप्रोकल हो जाता है। तो हमारा क्या बन जाएगा, ये मीटर पर सेकेंड, दैट मीन्स मीटर डिवाइडेड बाय सेकेंड इंटू 1/सेकेंड। अब सेकेंड इंटू सेकेंड क्या हो जाएगा, सेकेंड स्क्वायर, और ऊपर रह जाएगा मीटर। सो हम क्या लिख सकते हैं, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसको हम ऐसे भी लिखते हैं, मीटर सेकेंड इनवर्स स्क्वायर, और मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सो द SI यूनिट ऑफ एक्सेलरेशन इज मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। SI यूनिट मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। वेलोसिटी टाइम ग्राफ फॉर यूनिफॉर्म मोशन। अब यूनिफॉर्म मोशन में क्या होता है, सेम टाइम के इंटरवल में इक्वल डिस्टेंस या फिर इक्वल डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल करेगा। दैट मीन्स मान लो ये इनिशियली एट 0 सेकेंड, उसके बाद 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, 3 सेकेंड एंड 4 सेकेंड। Let's say at 0 second the displacement was 0 meter. After 1 second, let's say the displacement is 1 meter. In another 1 second, that is 2 second, let's say the displacement is 2 meter, and in another 1 second, let's say 3 meter, and the last second is 4 meter. So in this case, if we find the velocity of each and every cases, let's say this is our first velocity, this is our second velocity, this is our third velocity, this is fourth, and this is fifth. So V1 will be ultimately 0. That means 0 divided by 0 meter per second. What will be V2? V2 is equal to 1 divided by 1. अब velocity का formula क्या होता है? Displacement divided by time है ना? डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम। अब इधर डिस्प्लेसमेंट कितना कर रहा है, 1 मीटर इन टाइम 1 सेकेंड, दैट मीन्स डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम विच इज 1 डिवाइडेड बाय 1 विच विल बी 1 मीटर पर सेकेंड। व्हाट विल बी द V2? V2 विल बी इक्वल टू, एट V2 में डिस्प्लेसमेंट कितना हो रहा है, 2 मीटर हो रहा है, दैट मीन्स डिस्प्लेसमेंट इज 2 मीटर एंड टाइम टेकन बाय is 2 seconds. So 2 cancel, that is 1 meter per second. Again in V3, again it will be 3 divided by 3 which will be equal to 1 meter per second, and V4 will be also 1 meter per second. अब देखो चारों चारों ये पांचों केस में, सॉरी चारों केस में हमें वेलोसिटी कितना मिल रहा है, 1 मीटर पर सेकेंड, 1 मीटर पर सेकेंड, 1 मीटर पर सेकेंड। दैट मीन्स द वेलोसिटी इज सेम कांस्टेंट। तो वेलोसिटी हमारे यूनिफॉर्म मोशन में वेलोसिटी जो है वो कांस्टेंट रहता है। अब इसका ग्राफ कैसा होगा, तो ये मान लो पॉइंट इस तरफ हमने मान लेते हैं वेलोसिटी को, दिस इज आवर वेलोसिटी इन y एक्सिस एंड टाइम इन
x axis. Okay, at initially or 0 second the displacement was 0, and that's why the velocity was also 0. 0 सेकेंड पे हमारा वेलोसिटी कितना हो गया 0. उसके बाद एट 1 सेकेंड द वेलोसिटी इज 1 मीटर पर सेकेंड. ये 1 मीटर पर सेकेंड और ये 1 सेकेंड. ओके, नेक्स्ट इन 2 सेकेंड द वेलोसिटी इज ऑल्सो 1 मीटर पर सेकेंड. ये फर्स्ट सेकेंड में था, ये दूसरे सेकेंड पे है. एट टाइम 2 सेकेंड द वेलोसिटी इज अगेन 1 मीटर पर सेकेंड. At time 3 second, the velocity is again 1 meter per second. At 4 second, again it's 1 meter per second. So the graph becomes a straight line parallel to the time axis. Okay. So if we join the dots or points, the graph becomes straight line, and which is also parallel to the time axis. So velocity time graph for uniform motion कैसा बनता है? Parallel to the time axis. Uniform acceleration. When an object changes its velocity in equal amount in equal interval of time, then the acceleration is said to be uniform. मतलब velocity जो है वो equal change होगा, equally change होगा. जैसे मान लो initially the object was at 0 meter per second. That means its initial velocity was 0 meter per second at time 0 seconds. After 1 second, his velocity becomes say 2 meter per second. तो इधर वेलोसिटी में कितना चेंज आ रहा है? 2 मीटर पर सेकेंड चेंज हो रहा है. In next second, that means in 2 second, his velocity becomes say 4 meter per second. अब भी उसका वेलोसिटी कितना चेंज हो रहा है? 2 मीटर पर सेकेंड. And in 3 seconds, say its velocity is 6 meter per second. Again, the change in velocity is 2 meter per second. Such accelerations are called uniform. मतलब इक्वल टाइम इंटरवल में अगर इक्वली उसने वेलोसिटी में चेंजेस लाया, तब उसके एक्सेलरेशन को हम क्या बोलते हैं? यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन. अब देखो एक्सेलरेशन निकाल के देखते हैं इधर यूनिफॉर्म होता है कि नहीं. अब देखो in this case, okay, given low case A, B and C change in velocity. अब A से B तक पहले चेंज इन वेलोसिटी कितना है? इट्स 2 मीटर पर सेकेंड. चेंज इन वेलोसिटी इज 2 मीटर पर सेकेंड. 0 से 2 तक गया, मतलब 2 मीटर पर सेकेंड. अब 0 से 2 तक जाने में उसको टाइम कितना लगा? 0 से 1 सेकेंड. दैट मीन्स 1 सेकेंड. तो टाइम इज 1 सेकेंड. अब एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या है? एक्सेलरेशन इज इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी और v माइनस यू. चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम. इसमें चेंज इन वेलोसिटी कितना आ रहा है? 2 मीटर पर सेकेंड. And time is 1 second, so it becomes 2 meter per second square. Next, while going from B to C, अगेन B to C जाने में उसको उसका वेलोसिटी में चेंज कितना आ रहा है? अगेन 2 मीटर पर सेकेंड. दैट मीन्स अगेन चेंज इन वेलोसिटी इज इक्वल टू 2 मीटर पर सेकेंड. एंड इट टेक्स टाइम 1 सेकेंड से लेके कितना गया? 2 सेकेंड तक. दैट मीन्स 1 सेकेंड लगता है उसको. दैट मीन्स t इज इक्वल टू 1 सेकेंड. सो इधर अगर एक्सेलरेशन निकालते हैं, अगेन चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम. चेंज इन वेलोसिटी इज 2 एंड टाइम इज 1, व्हिच विल बी इक्वल टू 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. क्लियर? एंड इफ वी सी अगेन फ्रॉम C to, let's say this is our point D, C to D. अगेन एक्सेलरेशन चेंज कितना आ रहा है? 2 मीटर पर सेकेंड. टाइम कितना लग रहा है? 1 सेकेंड. दैट मीन्स 2 डिवाइडेड बाई 1 विच इज इक्वल टू 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. अब इसमें यूनिफॉर्म
एक्सेलरेशन मिल रहा है, मतलब एक्सेलरेशन जो है वो कांस्टेंट है, 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से क्या हो रहा है, उसका स्पीड में इंक्रीज हो रहा है। वेलोसिटी टाइम ग्राफ फॉर यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। अब यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन में हमने क्या देखा था, इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में उसका वेलोसिटी जो है वो इक्वली इंक्रीज होता है या फिर डिक्रीज होता है। लेट्स से इनिशियली एट 0 सेकेंड its velocity was 0 meter per second, and after 1 second, that means in 1 second his velocity increased to 2 meter per second, and in 2 seconds, let's say it's 4 meter per second, and in 3 seconds it's 6 meter per second. If we put this data in the graph, then it is our velocity time graph, in which in x-axis we take the time, and in y-axis we take the velocity. Okay, at time is equal to 0, the velocity is also 0, that means इस point पर lie करेगा। उसके बाद at time is equal to 1 second, which is this 1 2 3। okay, at 1 second its velocity is 2 meter per second। okay, this one in 2 seconds his velocity is 4 meter per second। in 2 seconds his velocity is 4 meter per second। okay, and then in 3 seconds his velocity is 4 meter per second, that means here this is 3 and this is 6। okay, if we join the points, then it looks like a straight line. So the velocity time graph for uniform acceleration is also a straight line.